Good morning students. We are studying reading skills और अभी तक हमने इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में. आज हम पढ़ेंगे लाउड एंड साइलेंट रीडिंग. लाउड रीडिंग या रीडिंग अलाउड, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ओरल रीडिंग. It is introduced after 2 months of reading. This means that when pupils learn what they have to read in a book, it should be introduced. The objective of loud reading is to enable students to read with correct pronunciation, articulation, intonation, stress and rhythm. तो लाउड रीडिंग तब होनी चाहिए जब बच्चे लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ चुके हों रीडिंग के, और जब आपने एक बार बच्चों को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रिदम पढ़ के टीचर ने पहले बता दिया हो. टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विथ एक्सप्रेशन, to test students' knowledge of speaking words, phrases and sentences, to give practice, to understand the meaning, to prepare pupil for effective silent reading. तो ये एम्स हैं लाउड रीडिंग के. प्रोसेस या स्टेप्स. अ टीचर गिव्स अ मॉडल रीडिंग. आप मॉडल रीडिंग करके बताएंगे टीचर. द मॉडल रीडिंग शुड बी गिवन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. Because in the words of Dr. West, until the pupil can read, the teacher is the sole source of language. He is like the mother bird putting gobbets of English into the open beaks of his pupil. The pupil requires repetition of model reading. The teacher should do so, but they should not be accustomed to it. The aim of model reading is to train the auditory nerves of the students. टीचर को पहले करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ रीडिंग करना है. अगर बच्चे चाह रहे हैं कि टीचर दोबारा रीडिंग करे तो आप दोबारा रीडिंग करके बताइए. एक दो बार रीडिंग करने के बाद फिर अब आप बच्चों को बोलिए कि वो रीडिंग करें. उसके बाद फिर आपको ध्यान देना है कि वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रेस और रिदम के साथ बोल रहे हैं. स्टेप 2 क्या है? द स्टूडेंट शुड रीड लाउडली. बट टीचर के पढ़ने के बाद बच्चे लाउड रीडिंग करेंगे. हियर the teacher should correct the pronunciation of students etc. of the reading. This should not be done in between but after the pupils finish reading. While reading plays, pupils should be assigned roles and they should read their respective roles. At the senior level, poem can be recited. At this stage, speed in reading along with accuracy should be emphasized, whereas at the junior level only accuracy is demanded. तो स्टेप 2 में बच्चे रीडिंग करेंगे और जब बच्चे रीडिंग कर चुके होंगे तब जो भी आपको करेक्शन करना है आप वो करेंगे. मेरिट्स ऑफ लाउड रीडिंग. लाउड रीडिंग टीचर्स प्रॉपर रीडिंग टू pupils since they follow the model reading of the teacher. The loud reading evolves their skill of speech and डिलीवर लेक्चर्स. तो बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करता है क्योंकि वो खड़े होकर पूरे क्लास के सामने पढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ. तो वो बाद में स्टेज में या बच्चों के सामने बोलने में उनको कॉन्फिडेंस रहेगा. देयर प्रोनाउंसिएशन आर वंस रेक्टिफाइड एंड करेक्टेड एट द स्पॉट. वो जो करेक्शन गलती कर रहे हैं उसको टीचर सही करते जाता है. लाउड रीडिंग गिव्स ट्रेनिंग टू सेंस ऑर्गन्स लाइक आइज, ईयर्स एट्सेट्रा and inculcates coordination among them. Herein the pupil learn by imitating, which is a quite natural method of learning. बच्चे देख के सीखते हैं टीचर से. Demerits क्या है? In the view of E.W. Mazel, the loud reading is not a source of pleasure. In the eyes of A.W. Fripsy, the too much reading aloud may lead to short सर्किटिंग ऑफ द मीनिंग. द लाउड रीडिंग, ये इन दोनों के व्यूज़ हैं लाउड रीडिंग के अगेंस्ट में. द लाउड रीडिंग में इंज्योर एंड हार्म द फैकल्टी ऑफ साइलेंट रीडिंग विच इज़ टू रिप्लेस इट व्हेन द स्टूडेंट ग्रो अप. सो लाउड रीडिंग छोटे क्लासेस के लिए ठीक है. जब बड़े हो जाएं तो द स्टूडेंट शुड स्विच टू साइलेंट रीडिंग. It is generally found that the students pay no attention to what the other students are reading aloud. Loud reading may benefit only a few students.
Loud reading is not allowed in public places like libraries when there is domain only in silent reading. Loud reading आप public places में या libraries में नहीं कर सकते. There only silent reading is allowed. तो what is silent reading? अब हम silent reading के बारे में पढ़ेंगे. Silent reading is thought to be the most important type of reading because a student can revert and focus his attention exclusively on the meaning of the words only during silent reading rather than in parrot reading which is loud reading. तो साइलेंट रीडिंग में बच्चा खुद कॉन्सेंट्रेट करके रीड कर रहा है तो वो जो वर्ड्स पढ़ रहा है उसको समझते हुए पढ़ सकता है, और लाउड रीडिंग में सिर्फ बच्चा पढ़ रहा है, उसको समझने का समय नहीं है. Hence, the silent reading is considered to be most important aspect of reading. So, the silent reading may be initiated and encouraged as soon as the children attain a little frequency in the reading. तो बच्चे जैसे frequency आ जाती है, बच्चा अच्छे पढ़ने लगता है, फ्लुएंसी आ जाती है उसकी रीडिंग में, तो साइलेंट रीडिंग आपको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए. As Mehta maintains that we all read faster than we speak and children may be initiated into the silent reading habit as early as possible. Steps of silent reading क्या है? The pupil are asked first of all to read a passage. They are warned against making any sound, whispering, murmuring or even moving their lips during the reading. तो बच्चों को बिल्कुल चुप होकर रीडिंग करना है. The student should not stop at punctuation marks. The movement of their eyes pauses while encountering difficulties of any kind. Aims of silent reading. Tachyurity. The silent reading teaches the students tachyurity on speechlessness. They are to read silently, not only without making any sort of sound, but not moving their lips so as not to disturb others. तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है. Speed, ease and fluency. Another aim of silent reading is to teach them to read speedily, easily and fluently. Reading and comprehending simultaneously. तो बच्चा पढ़ भी रहा है और उसके साथ साथ उसको समझते भी जा रहा है. Addition to vocabulary. तो साइलेंट रीडिंग है, उसमें बच्चे को एम्पल टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलने के लिए बच्चे को, तो वो उसकी वोकेबलरी को बढ़ाता है और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखता है वो. प्रॉफिट एंड प्लेजर एट द सेम टाइम. तो प्रॉफिट और प्लेजर दोनों उसको मिल. मेरिट्स ऑफ साइलेंट रीडिंग. एडवांटेजेस क्या हैं साइलेंट रीडिंग के? द सेवियर ऑफ टाइम एंड एनर्जी. द साइलेंट रीडिंग इज़ द सेवियर ऑफ our time and energy because of being quicker. It saves our time and because silent no energy is wasted in speech. Evaluation of interest. The silent method of reading evolves the interest of student in reading as a deterrent. The silent reading, as Mehta opinions, functions as a deterrent against the tendency of beginners to first translate what they read into their mother tongue and thereafter in English. तो मेहता के हिसाब से जो साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं बच्चे, तो उस समय वो ट्रांसलेट भी करते जाते हैं, अपनी मातृभाषा में समझते जाते हैं और फिर उसको इंग्लिश में समझेंगे. अ ट्रेजर फॉर फ्यूचर. साइलेंट रीडिंग इज़ रियली अ ट्रेजर फॉर फ्यूचर, लाइक व्हेन द किड्स मैच्योर एंड विजिट पब्लिक प्लेसेस. तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है. जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं, पब्लिक प्लेस में है, ऑफिस में है या हायर सोसाइटीज़ में, वहाँ पे साइलेंट रीडिंग जो है वो उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी. ट्रिगर्स सेल्फ एजुकेशन. तो बच्चा कहीं पे भी साइलेंट रीडिंग कर सकता है तो वो सेल्फ एजुकेट होने के लिए कैपेबल हो जाता है. कहीं पे भी वो बुक्स पढ़ सकता है बैठ के और अपने आप पढ़ाई कर सकता है. फोकसेस अटेंशन. साइलेंट रीडिंग करते समय हमारा अटेंशन जो है बिल्कुल बुक पे या जो आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर रहता है, ना कि प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, ना कि आपको लाउड बोलना है और दूसरे बच्चों को सुनाना है. डीमेरिट्स क्या हैं साइलेंट रीडिंग के? डस नॉट सूट बिगनर्स. तो छोटे बच्चे हैं उनके लिए साइलेंट रीडिंग सही नहीं है.
बिकॉज उनको हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाना है, उनकी गलतियों को हमें करेक्ट करना है। ये जब बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली, तब हम साइलेंट रीडिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नो टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इसमें प्रोनाउंसिएशन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बच्चा खुद पढ़ रहा है तो वो गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये टीचर को नहीं पता चलता है। नॉट चेकेबल, बच्चा क्योंकि साइलेंट रीडिंग कर रहा है तो अगर बच्चा गलती भी कर रहा है, गलत भी पढ़ रहा है, तो उसको हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो साइलेंटली पढ़ रहा है, टीचर को नहीं पता। द मिस्टेक्स आर नॉट करेक्टेबल, मिस्टेक्स करेक्ट नहीं होते हैं तो बच्चा वैसे ही पढ़ता जाता है। फुल ऑफ बोरडम एंड टीडियम, कभी कभी बच्चे सुस्त हो जाते हैं साइलेंट रीडिंग करने के समय, या बच्चों का इंटरेस्ट नहीं जागता है, या तो उन्हें साइलेंट रीडिंग करने बोला जाए तो वो इधर उधर ध्यान भटकता है। हेल्पलेसनेस ऑफ द रीडर, द ग्रेटेस्ट फ्लॉ ऑफ साइलेंट रीडिंग इज़ द हेल्पलेसनेस ऑफ द रीडर विच इज़ द मोमेंट ऑफ डिफ़िकल्टी कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ टीचर। तो अगर बच्चा कहीं अटक गया है क्योंकि वो साइलेंट रीडिंग कर रहा है, उस समय वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता, या उस समय टीचर प्रेजेंट नहीं है, वो खुद पढ़ाई कर रहा है, तो उसका मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए कोई भी प्रेजेंट नहीं है। दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट स्किल्स ऑफ रीडिंग। हमने 6 टाइप के स्किल्स पढ़े हैं रीडिंग के।